Hello students. So today we are going to start a very important part, in fact the last part of indefinite integration, that is integration by partial fraction. Now let's see what is a partial fraction. Partial fraction is a technique by which we can break the complex fractions into simple fractions. Okay, suppose let me explain you with the help of one example. That will be the first one. Suppose I say the question is integration x dx by 2x plus 1 x plus 1. Now this is a very complex sum as it appears to be, because this whole part is a very complex part. But if somehow we can break this, suppose let us talk with of the only of the sum. चलो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है. अगर किसी तरीके से हम लोग इसको जैसे मान लो a बाई 2x प्लस 1 या b बाई x प्लस 1 में तोड़ पाए तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है. अगेन वी हैव टू ब्रेक इट, और फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड मेनी इंटीग्रल, बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. इसको 2-3 पार्ट में ब्रेक करना होगा. बट व्हाट अबाउट दिस 1 by x plus 1 इजी इंटीग्रेशन, log. तो we will see shortly that partial fraction is a method of splitting the bigger fractions, complex fractions into simpler fractions. Okay, how? So let's start today's work. So as I have written, this was the first sum for today. This was also the first sum for today. Integration x dx by x plus 1 to x plus 1. Okay, this is the question. Now let's start the partial fraction method. Let x by 2x plus 1 x plus 1 equal to a by 2x plus 1 and b by x plus 1, where a and b are what? A and b are some integers. Okay, implies that, so if you take the LCM and all, you will get a x plus 1 plus b 2x plus 1. Okay, so on simplifying we are getting this thing. अब क्या करना है? अब हमको x के जगह पर ऐसे कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं जिससे एक वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाए. सपोज इसको 0 करने के लिए हमको x का वैल्यू क्या लेना होगा? -हाफ. तो लिखो एट x इक्वल टू -हाफ क्या होगा? अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां -हाफ पुट कर दो. इज इक्वल टू a -हाफ प्लस 1 क्या होता है? +हाफ, और ये क्या होगा? 0. तो फाइनली क्या मिला? a क्या मिला? a इक्वल टू -1. अब हमको b चाहिए, तो a को 0 करना होगा. तो देखो x प्लस 1 है, तो अगर हम क्या पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा. सिंपली यहां पे पुट करेंगे x इक्वल टू -1. ओके, तो एट x इक्वल टू -1 क्या मिलेगा? -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1. मतलब तो ये क्या मिला? -1 इज इक्वल टू b इंटू -1. तो ये इंप्लाई कर रहा है b इक्वल्स टू 1. तो दिस सिंपल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सिंपल फ्रैक्शन. तो इसका मतलब, इसका इंटीग्रेशन मतलब अब इन दोनों का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये फ्रैक्शन अब ये बन गया है. तो इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू फैक्टर्स. तो देयरफॉर वी कैन से व्हाट? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज a का वैल्यू कितना आया? -1 dx by 2x plus 1 प्लस इंटीग्रेशन b कितना आया? 1 by x plus 1 dx. तो यहां पे हमको a का वैल्यू मिला कितना? -1, और b का वैल्यू मिला 1. नाउ यू जस्ट सिंपली इंटीग्रेट इट. तो -1/2 log 2x plus 1 plus
log x plus 1 plus c. Okay, so this is our final answer. So minus 1/2 log 2x plus 1 plus log x plus 1 plus c. So please note it down and we will move shortly to the next sum. Okay. Now next sum. This sum we are using on the method of substitution. Okay, question number 2. Same thing, but we will first start with substitution. Cos x dx by 1 plus sin x 2 plus sin x. ओके, अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट तो करेंगे ही, पर उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट अस फर्स्ट डू अ सब्स्टिट्यूशन. ओके, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? लेट u इज इक्वल टू sin x. तो du क्या होगा? cos x dx. Now apply the substitution. du by 1 plus u 2 plus u. ओके, अब क्या करना है? अब जैसे पहले सब में किए थे, लेट 1 by 1 plus u 2 plus u equal to a by 1 plus u plus b by 2 plus u. तो 1 is equal to a into 2 plus u plus b into 1 plus u. I know this is clear. Now अब क्या करना है? अब सब्स्टिट्यूट कर दो. अब लिखो therefore 1 is equal to, अब क्या करेंगे? अब at u equal to -1, चलो -1 पुट करते हैं, तो 1 is equal to a into 2 minus 1, 1 plus 0. ये क्या इंप्लाई करेगा? a equal to 1. और फिर at u is equal to -2, तो 1 is equal to 0 plus b into 1 minus 2 कितना होता है? -1, यानी कि b कितना निकला? -1. Okay, now we can put it, integrate it. So therefore I is equal to integration, what was a? a 1 था, तो 1 by 1 plus u du. अब b क्या था? -1 by 2 plus u d. तो ये क्या बन जाएगा? 1 by u का इंटीग्रेशन क्या होगा? log. तो 1 by 1 plus u minus log 1 2 plus u plus c. अब u क्या था? sin x. तो ये तुम लोग खुद ही कर लेना. अब नेक्स्ट स्टेप में u की जगह पे sin x बैठा देना, तो log 1 plus sin x minus log 2 plus sin x is equal to u. Okay, now we are going to the third question. Next question. Okay, so I'm rubbing the board and we will move towards the third question. Okay, question number 3. See, this is different type. अभी तक हम लोग जो दो सम किए थे, वहां पे क्या था कि द फैक्टर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे, दे वेर लीनियर फैक्टर. अब सेकेंड टाइप, क्वेश्चन नंबर 3. 3x स्क्वायर प्लस 5x बाई x माइनस 1 into x plus 1 whole square dx. Okay, now please note it down. The sum we are going to do is this. 3x square plus 5x by x minus 1. यहां पर जो ये फैक्टर है, ये एक होल स्क्वायर है. अगर डिनोमिनेटर में कोई होल स्क्वायर या होल क्यूब रहता है तो क्या करते हैं? उसका क्या सिस्टम, मेथड क्या है? Let 3x square plus 5x by x minus 1
x plus 1 whole square is equal to a by x minus 1 linear factor plus b by x plus 1 plus c by x plus 1 whole square। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर ये कोई होल स्क्वायर फैक्टर आता है तो हम लोग पहले एक बार x प्लस 1 लेंगे पावर 1 और उसके बाद आएगा पावर 2, माने ये पहले x प्लस 1 एंड देन वी गो फॉर व्हाट x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब अगर एलसीएम लेके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x, एलसीएम क्या होगा ये इंटू ये, है ना, तो a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 और c इंटू x माइनस 1। ठीक है, ओके वी गॉट इट। अब हमको x के जगह पर कुछ वैल्यूज बैठाने होंगे अपने मन से, जिससे कुछ कांस्टेंट जीरो हो जाए और बाकी कांस्टेंट का वैल्यू हम पा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1। अब देखो एट x इक्वल टू 1 क्या होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 5 8, ये क्या होगा a इंटू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, और ये देखो 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख दिए, तो यहां से क्या मिला a इक्वल टू 2। ठीक है, अब लेट्स पुट a इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 1। अब लिखो एट x इक्वल टू माइनस 1, तो when we are putting x equal to minus 1, this term and this term will vanish। यहां पर क्या मिलेगा 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, अब प्लस c इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 2। अब यहां पर यार देख लो क्या मिल रहा है हमको 3 माइनस 5, मतलब यहां पर भी क्या आया माइनस 2 इज इक्वल टू सी इंटू माइनस 2, ये इंप्लाई कर रहा है c इक्वल टू 1। तो हमको a और c का वैल्यू तो मिल गया, अब प्रॉब्लम हो रहा है b का वैल्यू के लिए। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कैसे निकालें। तो अब क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें ये और ये 0 हो जाए, नहीं, तो वी कैन टेक एनी सुटेबल वैल्यू। तो लेट अस टेक नाउ लेट्स पुट x इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ लेट x इक्वल्स टू 0, तो एट x इक्वल्स टू 0 ये क्या होगा न्यूमरेटर तो 0 LHS 0 हो गया, और ये क्या मिला a इंटू 1 प्लस b इंटू क्या हो रहा है ये 0 पुट करने से माइनस 1 इंटू प्लस 1 मतलब माइनस 1, अब प्लस c इंटू क्या मिला माइनस 1। ठीक है, तो हमको a और b का वैल्यू तो सॉरी a और c का वैल्यू पता है, चलो पुट करते हैं। तो 0 इक्वल टू a कितना है 2 इंटू 1 2 माइनस b और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ठीक, तो इस b को अगर हम इधर टाल दें तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 1, तो b का वैल्यू क्या मिला 1। तो इस तरीके से हम अपने मन से कोई भी आर्बिट्री वैल्यू पुट करके we will find a formal equation, and in that equation we can put the value of the known variables and we can get the unknown। तो ये c मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो क्या लिखे थे हम लोग, अब हम लोग करना क्या था, ओके हाउ विल डू द इंटीग्रेशन a by x minus 1, तो a कितना है, तो लिखो therefore I is equal to व्हाट इज ए का वैल्यू कितना है a इक्वल टू 2 1 बाई x माइनस 1 dx, b कितना निकला 1 इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस 1 dx, c कितना निकला हुआ है 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ वी कैन डू इट इजीली, 2 log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 माइनस 2 बाई x माइनस 2। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, याद रखना इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। ओके, तो हियर वी आर गेटिंग अच्छा ये तो x प्लस 1 होल स्क्वायर था ना,
अच्छा x प्लस वन होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस वन होल स्क्वायर. ओके, तो वी विल गेट ऑब्वियसली हियर x प्लस वन. ओके, हाँ, तो माइनस, तो दिस विल बी व्हाट, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. ठीक है, क्योंकि वन बाई एक्स स्क्वायर इंडिकेशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स. तो यहां पर भी हो गया प्लस सी, क्योंकि सी का वैल्यू तो वन है. इस तरीके से हमको ये मिला. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम, डिफरेंट टाइप ऑफ सम. अगर अभी तक हम लोग जितना भी सम किए थे उसमें जो फैक्टर्स थे, all the factors of denominator were linear. If any factor is quadratic, then what is the method? अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन. ओके, नाउ आई एम शोइंग दैट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार आईएससी में आ भी चुका है. क्वेश्चन नंबर 4. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन dx. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी here the factor is a quadratic. Here the factor is quadratic. In that case, what we can do, let's see. So let x plus 1 by x square plus 3 x minus 1 is equal to what? A by x square plus 3. अच्छा, सॉरी, यहीं पे ट्रिक है. अगर यहां पर नीचे में याद रखना, अगर डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है तो ऊपर में हमको लीनियर फंक्शन लेना होगा. इफ द डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर देन द न्यूमरेटर शुड बी अ लीनियर फैक्टर. प्लस, तो ए बी हो गया सी बाई एक्स माइनस वन. ठीक है, तो ये हम लोग को करना होगा. कीप इन माइंड, इफ द डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक, यहां पे खाली ए या बी लेने से नहीं चलेगा, यहां पे क्या लेना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर. कब लेंगे, जब ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नॉर्मल, नो प्रॉब्लम. तो अब आफ्टर टेकिंग एलसीएम व्हाट वी कैन से, ax प्लस b x माइनस वन प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 3. ओके, अब देखो, अब इसमें हम लोग पहले एक काम करते हैं. हम लोग x से जगह पे 1 पुट करते हैं. तो एट x इक्वल्स टू 1 क्या मिलेगा, देखा जाए. व्हाट वी कैन गेट एट x इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये 0 हो जाएगा, और c 1 प्लस 3 यानी कि 4. ये क्या इंप्लाई किया, c इक्वल टू हाफ. ठीक है, c इक्वल टू हाफ हो गया. अब देखो, अब यहां पर एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर. तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो इधर क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, 0. और यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस सी. अब c के जगह पर अगर तुम 1/2 बैठा देते हो तो a कितना निकल गया, a निकल गया माइनस हाफ. ठीक, अच्छा, ओके, डन. अब रहा बात, तो वी गॉट a, वी गॉट c. अब हमको b का वैल्यू जानना है. ओके, तो लिखो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स. अब कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, 1 है. यहां पे क्या होगा, माइनस बी, और ये क्या होगा, c इंटू 3 प्लस 3c. तो इस b को इधर ला दो, और c का वैल्यू कितना है, 3/2 माइनस 1, ये कितना देगा, 1/2. ठीक है, हो गया. तो a का वैल्यू मिल गया,
b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। अब इसमें पुट कर दो, तो लिखो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कितना निकला था हम लोग का माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3dx प्लस c कितना निकला हुआ है हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अब देखो, अब ये नॉर्मल वे में तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं। माइनस हाफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3dx प्लस हाफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3dx और इसको एज इट इज लिख दो हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। नाउ ये तीन सम है यहां पर और तीन टाइप का सम। हियर वी विल अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अगर u पकड़ते हो तो व्हाट विल यू गेट? इफ यू टेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू u तो क्या मिलेगा हम लोगों को? बोलो। इफ आई टेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू u तो ये कैसे होगा? तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू u जैसे लिखते हैं तो ये क्या आएगा? माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन du बाई u, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 को u पकड़ते हैं, यहां पे कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 u इक्वल टू du क्या होगा? 2x dx। तो ये जो 2 है वो इसके नीचे आकर हाफ हो जाएगा। तो पहले से माइनस हाफ है और वो हाफ क्या बन गया? 1 माइनस 1 बाई 4। डू द सम। बेटर बेस्ट वे टू लर्न द मैथ्स, पॉज द वीडियो, try to complete on your own. If you not possible, then see one step, get the idea, try to करने का। देखो मैथ्स करने का सही तरीका क्या है? वीडियो तुम लोग ये सब इंटीग्रेशन तुम लोग कर चुके हैं, अब तुम वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद ट्राई करो, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये लॉग आएगा, तो क्या हमसे फील हो रहा है उसका आंसर से मैच कर लेना लास्ट में। दैट इज द वे टू लर्न। ओके, प्लस हाफ इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर और √3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 बाई 4 लॉग u प्लस 1 बाई 2 √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस हाफ log x माइनस 1 प्लस c। ओके, क्लियर? अब करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट अब इसको तुम लोग खुद कर लेना, इस u की जगह पर ये बैठा देना x स्क्वायर प्लस 3, बस वो मैं नहीं लिख रहा हूं और बाकी जो है टर्म्स एज इट इज रहेगा। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सम। ओके, नाउ we are going to the next sum. So please copy the video, copy the sum by pausing the video, and as I told you, try to do more and more sums on your own. This is a partial fraction, important part of integration, and by this we will come to the end of indefinite integral, and in the next video we will start the definite integral. Okay, now let's come to, although we have done this type of sum, still I am going to do one more. Integration e to the power x dx by e to the power x minus 1 whole square e to the power x plus 2. We have done this type of sum, but still I am going to do one more. See, first thing that will come to your mind is what? Remove this all e to the power x. How? Let u is equal to e to the power x. So what will be du? E to the power x dx. तो du क्या होगा? e to the power x dx. तो I is equal to क्या निकला? इसको क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को du,
और यहां पे लिखो u माइनस वन होल स्क्वायर u प्लस टू। तो ये e टू दी पावर h dx क्या निकल गया du, और ये क्या है u माइनस वन होल स्क्वायर, और ये क्या है u प्लस टू। अब ये सिंपल सम हो गया, इस तरह से हम लोग कर चुके हैं होल स्क्वायर का। एक सम मैं और बता दे रहा हूं, लेट वन बाई u माइनस वन होल स्क्वायर u प्लस टू क्या होगा a बाई u माइनस वन, b बाई u माइनस वन होल स्क्वायर प्लस c बाई u प्लस टू। एज आई टोल्ड यू, जब भी होल स्क्वायर रहेगा तो पहले पावर वन फिर पावर टू, a बाई पावर वन b बाई पावर टू। अगर कहीं कोई सम में क्यूब का आ गया तो a बाई पावर वन, b बाई पावर टू, c बाई पावर थ्री, और उसके बाद अगर कोई टर्म रहा तो d बाई नाइन। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर लीनियर है तो सिंगल रहेगा, होल स्क्वायर जैसे रहेगा, और अगर नीचे में क्वाड्रेटिक आ गया तो जैसे मान लो u स्क्वायर प्लस टू, तो ऊपर में ax प्लस b, au प्लस b लेना पड़ेगा। तो ये तीन टाइप का सम टोटल होता है। ठीक है, और तीनों टाइप का सम हम वीडियो में करा दिए हैं। नाउ इट योर वर्क इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स ऑफ दिस टाइप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, वट एवर टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग। ओके, अब देख, तो इफ वी टेक द एलसीएम एंड ऑल, लास्ट में क्या मिलेगा, वन इज इक्वल टू a, ये u माइनस वन, u प्लस टू प्लस b इंटू u प्लस टू और c इंटू u माइनस वन होल स्क्वायर। नाउ सिंपल वे एज वी हैव डन इट, एक बार u की जगह वन पुट करेंगे, फिर टू पुट करेंगे, फिर जीरो पुट करेंगे, और हमको a b c का वैल्यू मिल जाएगा। तो एट u इक्वल टू वन क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या वन प्लस टू थ्री, थ्री b, तो b इक्वल टू वन बाई थ्री। एट u इक्वल टू माइनस टू, अब अगर माइनस टू लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा, तो लिखो वन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन मतलब 9c, तो c इक्वल टू कितना निकला, वन बाई नाइन। तो a और c तो निकल गया, बच गया बीच b और c, अब a बच गया। अब a के लिए हम लोग चलो क्या करते हैं, कुछ भी ले लिए, एट u इक्वल टू जीरो, तो एट u इक्वल टू जीरो, तो वन इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू मतलब माइनस टू, प्लस b इंटू टू प्लस c इंटू माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन। अब यहां पर हमको किसका वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए, तो माइनस टू ए कितना आया है, अच्छा हमको a का वैल्यू चाहिए, तो माइनस टू ए को इधर निकाल दो, टू ए हो गया, इक्वल टू टू बी मतलब टू बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन, तो टू ए इज इक्वल टू, यहां पे नाइन एलसीएम ले लिए, तो सिक्स प्लस तो कितना आ गया, थ्री, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a, तो a कितना निकल गया, अच्छा हियर वी आर गेटिंग b, ओ सॉरी 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 यहां पे प्रॉब्लम हो गया है, हाँ तो जीरो पुट किए तो जीरो पुट किए तो क्या आया, a का वैल्यू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, फिर b का टू बी और माइनस वन स्क्वायर c। ओके, नाउ वी आर पुटिंग इट and we are getting the value of a is equal to, so from here we can get the value of a, from here we are getting the value of a as minus 1 by 9. Okay, so we are getting the value of a as minus 1 by 9, तो a का वैल्यू कितना मिला, minus 1 by 9. ओके, बिकॉज ये जो यहाँ पे है ना, इसको इधर डाल दो माइनस वन, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो माइनस नाइन, ये वन के लिए, ये जो यहाँ पे वन बचा है ना इधर चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस वन बाई नाइन। तो a b c का वैल्यू मिल गया, नाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन इजीली। नाउ हाउ टू डू द इंटीग्रेशन, लेट्स सी, वी आर, तो वी कैन डू द इंटीग्रेशन नाउ इजीली, कैसे, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, a कितना आया है
minus 1 by 9. A is equal to minus 1 by 9, 1 by u minus 1 du. B कितना आया था? B 1 by 3 प्लस 1 by 3 1 by u minus 1 का होल स्क्वायर, और C कितना आया था? 1 by 9 प्लस 1 by 9 इंटीग्रेशन 1 by u plus 2 du d. ओके, अब इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, चलो कर लेते हैं. माइनस 1 by 9 log u minus 1 माइनस 1 by 3 log 1 by 3 into 1 by u minus 1 प्लस 1 by 9 log u plus 2. ओके, ये हो गया. अब लास्ट में स्टेप में u की जगह पुट कर देना e का पावर x. अब जहां जहां u है वहां क्या पुट कर दोगे? इन द प्लेस ऑफ u you put what? u is equal to e to the power x. तो ये सब जगह u की जगह पे e का पावर पुट कर दोगे और प्लस c. ओके, तो we have done all type of sums. Now it is your responsibility to practice more and more sums of this type. And with this video we are ending the indefinite integral, and very soon we'll start the definite integral. But practice this topic very well. Okay students, have a